اللہ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی ہے کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو ریسرچ میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو فجر کی نماز ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے خیریت سے۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو کو ریئیکشن دینے آ رہے ہیں۔ تحصیل علم چینل کا نام ہے۔ ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کر لیے گا اور میری ویڈیو کو انت تک دیجیے گا۔ بڑی امپورٹنٹ بہت بہترین ویڈیو ہے یہ کہ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے۔ ایک مسلمان پہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب حیثیت ہے تو زکوٰۃ، فطرہ، حج، عمرہ یہ سب ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن روز مرہ کے کاموں میں جو آدمی اگر کرے، یعنی کہ سنت کے مطابق کرے یا ہمارے اسلام کے مطابق کرے تو وہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے اس کا۔ اور اس میں سے سب سے اہم ہے 5 ٹائم کی نماز۔ اور فجر کی نماز آدمی ترک کرتا ہے، عشاء کی نماز ترک کرتا ہے۔ ویسے تو 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، لیکن فجر عشاء کی نماز بہت مین مانی گئی ہے۔ فجر اس لیے مین مانی گئی ہے کیونکہ وہ اس وقت آدمی سوتے رہتا ہے اور اس کو نیند سے اٹھنا رہتا ہے، اس لیے فجر کی نماز بہت اہم ہے، بہت معنی رکھتی ہے۔ ویسے نماز تو 5 ٹائم کی معنی رکھتی ہے، بس فجر کا وقت سونے کا زیادہ اچھا ہوتا ہے، آدمی سوتا بہت ہے، اس وجہ سے یہ نماز زیادہ اہم ہے عشاء کے لیے۔ تو آئیے ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا اسلام میں کیا کیا اچھی باتیں سکھائی گئی ہیں جو آدمی روز اگر کرے گا تو اس کو بے شمار نیکیاں، بے شمار کیا بولتے ہیں سمجھ نیکیاں ملیں گی اور اس کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو آئیے پہلے ویڈیو ہم لوگ اینڈ تک دیکھتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ ہر آدمی کو سچائی پتہ چلے اور کوشش کرے وہ بھی نماز پڑھنے کی، تمام جو اہل اچھے کام ہیں وہ سب کرنے کی سنت کے مطابق۔ چلیے آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی ہے کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو ریسرچ میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو فجر کی نماز ضرور پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام میں عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ جب ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو جیسے کھانا کھانا، ضرورت کے کاموں کو کرنا اور دوسروں سے اچھا برتاؤ کرنا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کریں تو یہ سب عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کریں تاکہ ہمارا ہر کام عبادت بن جائے۔ اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وہ عبادات ہیں جن کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، اور یہ سب مل کر ہمارے ایمان کو مضبوط بناتے ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ لیکن زندگی کے روزمرہ کے کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارنا ان عبادات کے لیے ضروری ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون اور کھمبا ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار اور پہچان نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو کالا کرتی ہے، مومن کے لیے فخر کا باعث بنتی ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دونوں جہان کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور نماز نہ پڑھنے پر سخت سزا کا ذکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین میں اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی انسانی جسم میں سر کی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا، یعنی اس نے ایسا جرم کیا جو کفر کے قریب ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو چیز جتنی اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی ادائیگی پر اتنا ہی زیادہ انعام و ثواب ملتا ہے، اور چونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے نماز کا انعام اتنا زیادہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور اس کی ادائیگی پر انعام اور ثواب بھی باقی 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت سب لوگ نیند میں ہوتے ہیں اور آرام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں نرم اور گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر
اللہ کی اطاعت اور محبت میں اللہ کے हुजूर सजदा करना और नफ्स को इसके लिए राज़ी करना बहुत मुश्किल काम होता है। जिस नेकी को करने में ज़्यादा मेहनत हो और नफ्स और शैतान से लड़ाई करनी पड़े, अल्लाह उस पर ज़्यादा अजर व सवाब अदा करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस बताते हैं कि फ़जर की नमाज और उस वक्त कुरान पढ़ने की बहुत अहमियत है। इससे हमें पता चलता है कि फ़जर के वक्त और फ़जर की नमाज कितनी ज़रूरी है। हदीस नबवी से नमाज की अहमियत व फजीलत व नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफजल हैं। सोचो, जब फ़जर की सुन्नत नमाज की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि पूरी दुनिया की सब नेमतें और ख़जाने उसके सामने कुछ भी नहीं, तो फिर फ़जर के फ़र्ज़ का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज पढ़ लेता है, नमाज फ़जर का फरीज़ा अदा कर लेता है, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी व मुस्लिम ही की एक और रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें फ़जर और असर अदा कर ली, वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़जर व असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बजमात अदा करेगा, उसे आधी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। जो इशा व फ़जर की नमाजें बजमात अदा करेगा, उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। फ़जर की नमाज पढ़ने में हम बहुत सुस्त और गाफिल हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लापरवाह हो गए हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, बाकी 4 नमाजों के मुकाबले में फ़जर की नमाज के वक्त लोगों की तादाद बहुत कम होती है। यही हाल घरों में औरतों की नमाज फ़जर का है। फ़जर की नमाज में इतनी तैयारी नहीं होती जितनी बाकी 4 नमाजों में होती है। गर्मियों में रातें छोटी होने का बहाना और सर्दियों में सर्दी का बहाना कोई दलील नहीं है। अल्लाह के यहाँ हमारे ये सब बहाने कबूल नहीं होंगे। हम में से बहुत से लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि हमारी रोज़ी या घर में बरकत नहीं है और हम कितना ही कमा लें पता नहीं चलता कि सब कहाँ चला जाता है। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम सब मुश्किलात, पैसे की कमी और बेरोजगारी को फ़जर की नमाज ना पढ़ने की वजह से देखें तो हम समझ जाएंगे कि ये सब मुश्किलें इसी वजह से हैं कि हम फ़जर की नमाज पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुस्ती, गफलत और लापरवाही करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बहुत सारी हदीसें बताई हैं। उन हदीसों में बताया गया है कि रिज़्क, खुशी और हर चीज़ की काफ़ी मिकदार फ़जर की नमाज पढ़ने से मिलती है। एक हदीस के मुताबिक हर सुबह फ़जर के वक्त एक फ़रिश्ता लोगों का रिज़्क लेकर ज़मीन पर आता है, लिहाजा जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त खुला होता है, फ़रिश्ता उसका रिज़्क दरवाजे पर रखकर चला जाता है और जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त बंद होता है, फ़रिश्ता उसका रिज़्क वापस लेकर चला जाता है। इस फरमान नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फ़जर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के लोग सुबह फ़जर के वक्त बेदार होकर जाग कर नमाज फ़जर अदा करते हैं, उन्हें उनका रिज़्क अता कर दिया जाता है। और दरवाज़ा बंद होने का मतलब ये है कि जो लोग सुबह फ़जर की नमाज ना पढ़ें और सोते रहें, उनके घर की खुशियाँ और बरकतें कम हो जाती हैं, उन्हें उनके रिज़्क से महरूम रखा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग फ़जर की नमाज और दूसरी नमाजें छोड़कर घर में खुशी और बरकत के लिए कुरान पढ़ने, मिलाद की महफिलें करने और कुरान के तावीज़ लटकाने की कोशिश करते हैं। ये तो सच है कि इन सब कामों में भी बरकत होती है, लेकिन कुरान पढ़ना, मिलाद की महफिल करना या कुरान के तावीज़ लटकाने से बरकत तब मिलती है जब हम नमाज भी वक्त पर पढ़ें। हर किस्म की खुशी और बरकत नमाज पढ़ने से मिलती है। अल्लाह की तमाम नेमतों, बरकतों और रिज़्क के दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। इसके साथ ही ये अम्र भी अहम है कि फ़जर के अलावा बकिया 4 नमाजों में भी खैर व बरकत नमाज फ़जर की अदायगी से ही मिलती है। इसलिए खुशी और बरकत का आगाज़ फ़जर की नमाज पढ़ने से होता है। याद रखें, फ़जर की नमाज ना पढ़ना और इसमें सुस्ती करना घर में बदकिस्मती की शुरुआत हो सकती है। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने हमें फ़जर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया? क्या फ़जर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त है या इस वक्त में कोई ख़ास राज है? इस राज को समझने से पहले हमें नमाज के बारे में जानना ज़रूरी है, जो हम पर दिन में 5 मरतबा पढ़ना फ़र्ज़ की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फ़र्ज़ हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है। और यह वजह सफ़र मेराज के दौरान उस वक्त ज़ाहिर हुई जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात के लिए बहुत ही कम वक्त में 7वें आसमान से भी आगे सफ़र किया था। उस रात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और उन्हें ख़ास इनामात दिए। उस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने क़ुर्ब ख़ास से नवाजा, अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुरों के अंजाम अज़ाब का नज़ारा करवाया। उस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया। उस सफ़र के दौरान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए एक ख़ास तोहफ़ा दिया गया, जो नमाज है। यह तोहफ़ा क़यामत तक इंसानों को अल्लाह के करीब करने के लिए है। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की। और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया। जिसके बाद भी फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और शायद फ़जर की नमाज आपके लिए सबसे मुश्किल हो, क्योंकि उस वक्त नींद बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप फ़जर के वक्त के ख़ास राज को समझेंगे तो आप कभी भी
फजर की नमाज नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद ना आने की बीमारी होती है और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से ये सवाल जरूर करते होंगे कि ए अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें कि जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं, उन्हें ताहयात कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसे एक अमरीकी किताब लिखने वाले ने तर्जुमा किया है, जिसका उन्वान है यानी दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं जहाँ से दो दुनियाएं मिलती हैं, वो दरवाजा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज़म में बयान करदा दरवाजा हमारी दुनिया और उस दूसरी दुनिया का है जहाँ से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के बारे में जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है, और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो जो उस वक्त सो जाता है तो वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कम मिकदार ही मिल पाती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले नमाज पढ़े वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान लें तो वो जरूर बिल जरूर उन नमाजों में हाजिर होते हैं, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत और अहमियत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बढ़ती जाती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये तुम्हारा रिएक्शन वाकई बेहतरीन वीडियो थी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान चाहे तो रोज़ हर कदम कदम पे नेकी कमा सकता है, अपनी नेकी में इजाफा कर सकता है। हर कदम कदम पे नेकी, कोई भी काम कर रहा है वो नेकी काम कर सकता है। राह चलते अगर आदमी जा रहा है, अगर उसको कोई पत्थर मिल गया या केले का छिलका मिल गया, उसको उठाकर उसने किनारे कर दिया तो वो नेकी में शुमार हो गया। तो हमारे मज़हब में हर चीज़ बताई गई, एक एक चीज़ बताई गई इस्लाम में कि आपको किस तरह ज़िंदगी बितानी है, किस तरह से क्या करना है। और जो ज़रूरी काम है जैसे कि फ़र्ज़ चीज़ है वो तो नमाज हम सब जानते हैं फ़र्ज़ है। फ़जर की नमाज़ सबसे अहम मानी गई है, इशा की नमाज़ क्योंकि ज़्यादा बड़ी होती है। और फजर की नमाज़ आदमी नींद उस टाइम बहुत सोता है, इसलिए उसको उठने में तक दिक्कत होती है, लेकिन जो उठता है सोचिए कितनी रहमत है। और फजर की ही नमाज में रोज़ी बढ़ती है। आज हम लोग जो परेशान हाल हैं काम को लेके, धंधे को लेकर, रोज़ी को लेके, इसी वजह से कि फजर की नमाज़ में हम लोग उठते नहीं हैं और अल्लाह से शिकवे शिकायत करते हैं। अल्लाह को कसरत से याद करिए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलिए, अल्लाह की ही इताअत करिए, इंशाअल्लाह तमाम परेशानी सब कुछ दूर हो जाएगी। तो ये हमारा रिएक्शन था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।